हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। इन प्रीवियस लेक्चर हमने देखा था कि डेरिवेटिव के रूल्स क्या है एंड सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव क्या होता है। वही सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव यूज करने वाले हैं इन एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। ओके, फर्स्ट differentiation can be used to find the maximum and minimum values of function. Okay, what is application of derivative is maxima, minima function, then increasing decreasing function, and application in economics and commerce. First application is maxima and minima function. What is maxima and minima function? If f dash of a is equal to 0 means first derivative is equal to 0 and double derivative less than 0 means negative, then function f of x has a maximum at x is equal to a. And second, for minimum, if first derivative equal to 0 and double derivative value is greater than 0 means positive, then we get function f of x has minimum value at x is equal to a. Next is a steps for find maxima or minima value. First, find first derivative of given function. जो भी given function है उसका derivative find करो. Then अगेन सेकेंड डेरिवेटिव मीन्स डेरिवेटिव का डेरिवेटिव जो भी फर्स्ट डेरिवेटिव फाइंड किया है उसी के ऊपर अगेन डेरिवेटिव अप्लाई करना है, देन वी गेट सेकेंड डेरिवेटिव. ओके, देन सेकेंड स्टेप इज व्हाट? फाइंड क्रिटिकल पॉइंट्स. क्रिटिकल पॉइंट्स मीन्स व्हाट? compare first derivative with 0, then we get values of x, that is a critical point. Then put that value in second derivative. When we put this value in second derivative, then we get maxima or minimum means negative or positive value. If negative value is there, then function is maximum, or positive value is there, then function is minimum. This is about maxima and minima function. Next, example on this maxima and minima function. Examine for maxima and minima for the following function. F of x is equal to 2x cube minus 9x square minus 24x plus 11. This is a given function. First, find first derivative of this function. Apply derivative formula rule. Then here is f dash of x is equal to 2 3s are 6. That is power become base. 3 2s are 6 into x square. 3 minus 1 is 2. Minus 9 2s are 18. एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव होता है 2x. सो अगर 9 से मल्टीप्लाई करते तो 18x माइनस x का डेरिवेटिव 1, दैट्स व्हाई हियर 24 प्लस 0 बिकॉज कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0. नेक्स्ट अगेन फाइंड डेरिवेटिव. डेरिवेटिव का डेरिवेटिव सेकंड डेरिवेटिव. सो f डबल डैश ऑफ x इज इक्वल टू 6 2 जा 12x माइनस 18x का डेरिवेटिव 1. व्हाट इज नेक्स्ट स्टेप? Find critical point. Critical point means first derivative compare with 0, that is equal to 0. First derivative is 6x square minus 18x minus 24 is equal to 0. Then take 6 common, then we get x square minus 3x minus 4. 6 1s are 6, 6 3s are 18 and 6 4s are 24. That's why take 6 common. After that we get this 6 is here multiply. In this side we get divide, then we get answer is x square minus 3x minus 4 is equal to 0. Then find roots of 4. Minus 4 into 1 is minus 4 and minus 4 plus 1 is minus 3. Hence we get here x minus 4 and x plus 1 is equal to 0. Then x minus 4 is equal to 0 or x plus 1 is equal to 0. Therefore values of x is 4 and minus 1. Then what is next condition? We get here x is equal to 4 and minus 1. Put this x is equal to 4 and minus 1 in second derivative. What is second derivative? Second derivative is what? F double dash of 4 is equal, F double dash of x is equal to 12x minus 18. Put value of x in second derivative. We get 12 into 4 minus 18.
तो 12 4 are 48 minus 18 is equal to 30, which is greater than 0. You get positive value. When value is positive, then function has a minimum at x is equal to 4. But find the minimum value. मिनिमम वैल्यू कैसे फाइंड करनी है? जो भी आपको x इज इक्वल टू 4 मिला है वो मेन जो फंक्शन है दैट इज गिवन फंक्शन f of x इज इक्वल टू 2x क्यूब माइनस 9x स्क्वायर माइनस 24x प्लस 11. यहाँ पे वो वैल्यू पुट करनी है x इज इक्वल टू 4. देन वी गेट आंसर इज माइनस 101. नेक्स्ट फॉर x is equal to -1, then we get what? F double dash of -1 is equal to 12 into -1 minus 18. Again same second derivative में value put करनी है. Okay, then we get answer is -12 minus 18, which is equal to -30, which is negative. When value is negative, then we get maximum function, that is f has a maximum at x is equal to -1. Okay, but find maximum value. Maximum value कैसे find करनी है? Put this -1 in given function, then we get answer is -24. Okay, so this is maxima and minima function. If function is given, then first find first derivative, then second derivative, then compare with first derivative, compare with 0, then we get critical points, put that critical points in second derivative, then we get negative and positive value or पॉजिटिव नेगेटिव व्हाटएवर जो भी आपको मिल रहा है. नेगेटिव मिल रहा है तो वो मैक्सिमम फंक्शन है एंड पॉजिटिव मिल रहा है तो वो मिनिमम फंक्शन. नेक्स्ट एग्जांपल, डिवाइड 50 into 2 parts such that their product is maximum. अभी यहाँ पे कुछ भी ऐसे वेरिएबल फॉर्म में क्वेश्चन नहीं दिया है तो उसको कन्वर्ट करना पड़ेगा, राइट? पहले फंक्शन फाइंड करना पड़ेगा, देन उसका डेरिवेटिव, सेकंड डेरिवेटिव. ओके, पहले फंक्शन फाइंड करते हैं. अभी यहाँ पे 50 नंबर दिया है, ठीक है. 50 की एडिशन मतलब क्या क्या हो सकता है? 10 40 20 30 ऐसे हो सकता है, बट हमें प्रॉपर नंबर नहीं पता है कि वो एडिशन कौन से नंबर की है. 50 है, ठीक है. तो पहले कंसिडर करो वो दो नंबर कौन से हैं. वो वेरिएबल ही लेना पड़ेगा, क्योंकि वेरिएबल क्यों चूज करते हैं हम? वेरिएबल की वैल्यू चेंज होती है, दैट्स व्हाई वी चूज हियर वेरिएबल. सो लेट x एंड y बी टू पार्ट्स ऑफ 50. ओके, दो पार्ट ऐसे जो 50 के है. देन एडिशन ऑफ, यहाँ पे क्या बोला है? सम. ओके, यहाँ पे सम ऐसे, सॉरी यहाँ पे सम नहीं बोला है, नंबर ऐसे है. 50 को डिवाइड कर रहे हैं हम दो नंबर में, ओके, दो पार्ट में. तो दो पार्ट ऐसे ले लिए x एंड y, उसकी एडिशन क्या है? 50. ओके, अभी फंक्शन क्या होता है? f of x और y, मतलब हमें y की वैल्यू चाहिए. तो y की वैल्यू चाहिए तो x का यहाँ पे कुछ काम नहीं है, तो x को शिफ्ट करो राइट साइड. y is equal to 50 minus x, right? So y is equal to 50 minus x is a function. बट यहाँ पे फंक्शन ऐसे ही हम सिलेक्ट नहीं कर सकते. एक कंडीशन दी है कि डिवाइड 50 into 2 parts such that their product is maximum, मतलब जो भी पार्ट है उनका प्रोडक्ट क्या है? मैक्सिमम है. ऐसे हमें प्रूफ करना है. ओके, सो प्रोडक्ट इज x into y, बट व्हाट इज वैल्यू ऑफ y? इज 50 minus x. वो यहाँ पे पुट करनी है. देन वी गेट x into 50 minus x, which is equal to x into 50 is 50x minus x into x square. तो ये हमें मिला फंक्शन. ओके, नेक्स्ट स्टेप इजी है. फर्स्ट डेरिवेटिव, सेकंड डेरिवेटिव. फर्स्ट डेरिवेटिव इज 50x का डेरिवेटिव 50 बिकॉज x का डेरिवेटिव 1 माइनस x स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x. अगेन टेक सेकंड डेरिवेटिव. और इस सेकंड डेरिवेटिव 50 का डेरिवेटिव 0 एंड माइनस 2x का डेरिवेटिव -2. ओके, अभी यहाँ पे कोई भी वेरिएबल मिला ही नहीं है, फिर भी हम नेक्स्ट स्टेप देखते हैं. कंपेयर फर्स्ट डेरिवेटिव विद 0. ओके, 50 minus 2x is equal to 0, क्योंकि फर्स्ट डेरिवेटिव इज व्हाट? 50 minus 2x. देन यहाँ पे अभी x की वैल्यू चाहिए. क्रिटिकल पॉइंट मीन्स वैल्यू ऑफ x. सो 50 is equal to, this is a minus 2x, then here we get plus 2x. So 50 is equal to 2x. Then 50 divided by 2 we get 25. तो x की वैल्यू कितनी हो गई? 25. अभी x की वैल्यू कहाँ पे पुट करनी है? सेकेंड डेरिवेटिव में.
ओके, बट व्हाट इज सेकंड डेरिवेटिव? डबल डैश ऑफ x इज इक्वल टू -2, वहां पे कोई वेरिएबल ही नहीं है x। ओके, तो वहां पे हम 25 वैल्यू पुट नहीं कर सकते, तो डायरेक्टली हमें वैल्यू क्या मिली? -2। वो क्या है? निगेटिव। निगेटिव मतलब मैक्सिमम फंक्शन, वही प्रूव करना था कि प्रोडक्ट इज मैक्सिमम। तो f इज अ मैक्सिमम एट x इज इक्वल टू 25। ओके, मतलब एक पार्ट तो हमें मिला 50 का, तो दूसरा पार्ट फाइंड करना है। दूसरा पार्ट क्या होगा फिर? y इज इक्वल टू 50 minus x, so 50 minus x is equal to 25. Therefore, two parts of 50 with maximum product are 25 each. मतलब दोनों पार्ट की वैल्यू क्या है? 25. This is about maxima and minima function, which is easy. Next is increasing and decreasing function. This is depend on first derivative. Okay, to find a given function is increasing or decreasing or constant, then this is a condition. वहां पे एक इंटरवल होता है, मतलब जो भी आपकी फंक्शन की वैल्यू इस इंटरवल में लाइज कर रही है नहीं, वो फाइंड करना रहता है, या तो आपको इंटरवल फाइंड करना होता है। ओके, f इज इंक्रीजिंग एट इंटरवल ए बी इफ फर्स्ट डेरिवेटिव इज ग्रेटर देन 0। मतलब इंक्रीजिंग फंक्शन के लिए क्या होगा? फर्स्ट डेरिवेटिव पॉजिटिव होना चाहिए, एंड डिक्रीजिंग फंक्शन के लिए क्या होगा फिर? फर्स्ट डेरिवेटिव निगेटिव होना चाहिए। ओके, देन to find increasing and decreasing function, this condition is necessary, which is first derivative is greater than 0 or first derivative is less than 0. Example on this: first, find the value of x for which the function f of x which is given is increasing or decreasing. Okay, तो यहाँ पे आपको x की वैल्यू के लिए फंक्शन इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग है ऐसे आपको फाइंड करना है। ओके, ऑब्वियसली फर्स्ट कंडीशन क्या है इसके लिए? डेरिवेटिव फाइंड करना पड़ेगा। इंक्रीजिंग के लिए कंडीशन क्या है? डेरिवेटिव ग्रेटर देन 0, फर्स्ट डेरिवेटिव। सेकेंड डेरिवेटिव यहाँ पे फाइंड नहीं करना है। ओके, तो देखो यहाँ पे f of x is given x cube minus 3x square minus 45x plus 2. What is first derivative is 3x square minus 6x minus 45। 2 का डेरिवेटिव 0। यहाँ पे 3 कॉमन ले लो, 3 कॉमन लिया तो क्या मिलेगा फिर? x square minus 2x minus 15। क्लियर? देन फाइंड रूट, 15 के रूट्स फाइंड करने, -5, 5 3 जा 15, बट यहाँ पे क्या है? -15। तो प्रोडक्ट में माइनस प्लस माइनस, बट यहाँ पे आंसर क्या चाहिए? -2। -5 plus 3 is -2, that's why your roots are -5 and +3। तो डायरेक्टली हम यहाँ पे पुट कर सकते हैं ब्रैकेट फॉर्म में, ये फैक्टराइज मेथड है। 3 into x minus 5 x plus 3। ओके, ये हमें फर्स्ट डेरिवेटिव मिला। अभी यूज करना है इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन के लिए। तो फर्स्ट, let f dash of x is greater than 0, this is for increasing function, but what is first derivative? 3 into x minus 5 x plus 3, which is greater than 0, then this is a 3, here it becomes 0, hence we get multiplication of two bracket is positive, x minus 5 into x plus 3। भी यहाँ पे एक कंडीशन याद रखो कि हमें यहाँ पे ऐसे कंफर्म पता नहीं है कि दोनों ब्रैकेट पॉजिटिव है दोनों ब्रैकेट निगेटिव है। ओके, तो इसको स्प्लिट करना पड़ेगा इस कंडीशन को, क्योंकि प्रोडक्ट पॉजिटिव कब होता है? मतलब a इंटू बी पॉजिटिव कब होगा? जब a एंड b की वैल्यू पॉजिटिव होगी और दोनों निगेटिव रहेगा। माइनस a इंटू माइनस बी इज प्लस a इंटू बी, और प्लस a इंटू प्लस बी प्लस ए बी, मतलब या तो ये दोनों निगेटिव हो सकते हैं या तो ये दोनों पॉजिटिव हो सकते हैं। दिस इज कंडीशन। ओके, तो कंडीशन हमें स्प्लिट करनी है कि दोनों या तो पॉजिटिव हो सकते हैं, मतलब x minus 5 is greater than 0 and x plus 3 is greater than 0, और ये हो सकता है कि x minus 5 is less than 0 and x plus 3 is less than 0। क्लियर? तो यहाँ पे दोनों एक तो पॉजिटिव या तो दोनों निगेटिव। अभी करो सिंप्लीफाई, -5 become +5, तो x is greater than 5 and x is greater than, ये +3 become -3, so x is greater than -3, और -5 here become plus, so x is less than 5 and x is less than -3। okay,
लेट पहला वाला कंडीशन x इज ग्रेटर देन 5 एंड x इज ग्रेटर देन -3। तो यहाँ पे क्या मिला, यहाँ पे हम रियल नंबर लाइन पे देख सकते हो कि x की जो वैल्यू है वो 3 से भी बड़ी है एंड 5 से भी बड़ी है। तो इन शॉर्ट वो क्या हुआ फिर 5 से वो वैल्यू बड़ी है। ठीक है, दैट्स व्हाई हियर वी राइट x इज ग्रेटर देन 5। ओके, next condition is what, x is less than 5 and x is less than -3। okay, अगेन रियल नंबर लाइन पे देखो कि x की जो वैल्यू है वो 5 से छोटी है, मतलब वो लेफ्ट साइड होगी। ओके, अगेन वो -3 से भी छोटी, अगेन वो लेफ्ट साइड है, मतलब वो इन शॉर्ट क्या है, वो x इज लेस देन -3। ओके, हेंस वी गेट फर्स्ट डेरिवेटिव ग्रेटर देन 0, मतलब फंक्शन इंक्रीजिंग मिला किसके लिए, फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ x इज ग्रेटर देन 5 एंड वैल्यूज ऑफ x इज लेस देन -3। ओके, ये इंटरवल क्या मिला फिर, -3 एंड 5। ओके, मतलब x की वैल्यू -3 एंड 5 के बीच में है। क्लियर? नेक्स्ट इज व्हाट, फंक्शन इज फर्स्ट डेरिवेटिव इज नेगेटिव, मतलब लेस देन 0, दैट इज व्हाट डिक्रीजिंग फंक्शन की कंडीशन है ये। ओके, देयरफॉर फर्स्ट डेरिवेटिव फाइंड किया था यहाँ पे 3 × x - 5 एंड x + 3, वही सेम फंक्शन यहाँ पे लेना है फर्स्ट डेरिवेटिव का। अगेन अभी देखो यहाँ पे प्रोडक्ट, किसका प्रोडक्ट, दो ब्रैकेट का प्रोडक्ट क्या है, निगेटिव। निगेटिव मतलब माइनस रहेगा। ओके, तो माइनस कब होता है यार, एक तो पहला वाला नंबर ना माइनस होगा, दूसरा प्लस होगा, या तो पहला वाला प्लस होगा दूसरा वाला माइनस होगा। मीन्स व्हाट, माइनस प्लस या प्लस माइनस। ओके, तभी हमें क्या मिलेगा, ये निगेटिव मिलेगा। ओके, सो यहाँ पे क्या करना है फिर, सेम वैसे ही कंडीशन लेनी, कौन सी, कि एक तो ये प्लस होगा ये माइनस होगा, या तो ये माइनस होगा ये प्लस होगा। तो देखो यहाँ पे x - 5 पॉजिटिव एंड x + 3 निगेटिव, और x - 5 इज निगेटिव एंड x + 3 इज पॉजिटिव। ओके, वही अगेन सिंप्लीफाई, जैसे ऊपर वाले सिंप्लीफिकेशन में किया था कि फर्स्ट वाला x - 5 इज ग्रेटर देन 0 एंड x + 3 इज लेस देन 0। यहाँ पे क्या है फिर, x 5 से बड़ा है एंड x -3 से छोटा है। ठीक है, तो वो पॉसिबल हो ही नहीं सकता, या तो वो x एंड -3 से बड़ा होगा या तो छोटा होगा, राइट। तो ये कंडीशन पॉसिबल नहीं है, सो दिस इज इम्पॉसिबल। देन यहाँ पे मतलब क्या बोला है, x यहाँ से 5 से बड़ा भी है एंड x -3 से छोटा, मतलब x इधर भी लाइज कर रहे हैं इधर भी लाइज कर रहे हैं, ऐसे पॉसिबल नहीं। एक तो x बड़ा होगा या छोटा होगा, तो दिस कंडीशन इज इम्पॉसिबल। नेक्स्ट कंडीशन दिस, x - 5 इज लेस देन 0 एंड x + 3 इज ग्रेटर देन 0। तो यहाँ पे क्या करना है, -5 बिकम प्लस एंड +3 बिकम माइनस। तो x यहाँ पे 5 से छोटा है एंड x -3 से बड़ा है, मतलब x कहाँ पे लाइज कर रहा है, -3 एंड 5 के बीच में लाइज कर रहा है। ओके, सो फर्स्ट डेरिवेटिव इज डिक्रीजिंग फॉर दिस -3 लेस देन x इज लेस देन 5। अभी यहाँ पे क्या बोला था कि x की वैल्यू फाइंड करने के लिए बोला था, मतलब इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन यूज करके x की वैल्यू फाइंड करो। अगर ऐसा एग्जाम्पल आता है कि फाइंड इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन, तो यहाँ पे क्या करना है आपको, जो भी गिवन फंक्शन है उसका डेरिवेटिव फाइंड करो एंड उसका ग्रेटर देन 0 या लेस देन 0 फाइंड करना है, मतलब जो भी वैल्यू आ रही है वो नेगेटिव आ रही है या पॉजिटिव आ रही है डेरिवेटिव की, वो आपको फाइंड करनी है। दैट इज व्हाट इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन। नेक्स्ट, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव टू इकोनॉमिक्स, कॉमर्स एंड मैनेजमेंट। अभी जो प्रीवियस वाला हुआ वो टू फाइंड मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू। ओके, बट यहाँ पे क्या है, अभी इकोनॉमिक्स में हमें डेरिवेटिव का एप्लीकेशन, डेरिवेटिव कैसे यूज करना है वो देखना है। ओके, फर्स्ट इज एवरेज कॉस्ट, मतलब दिस एप्लीकेशन डिपेंड ऑन कॉस्ट फंक्शन, दैट इज कैपिटल C, average cost, marginal cost function, marginal revenue function, and elasticity. Okay, so first is average cost. What is average cost? This is the total cost
of function divided by number of units of good produced, which is equal to TC upon Q. जो भी गिवन फंक्शन है दैट इज टोटल कॉस्ट गिवन रहता है डिवाइड बाय जो भी प्रोडक्शन है, मतलब जो भी नंबर ऑफ यूनिट्स है, ओके वो यहाँ पे वैल्यू पुट करनी, दैट इज अ एवरेज कॉस्ट. नेक्स्ट इज अ मार्जिनल कॉस्ट फंक्शन. इफ कॉस्ट इज C is the cost of producing X unit, okay, of product, then C is generally a function of X is called total cost function. Then marginal cost function is what? The rate of change. What is rate of change? That is derivative. Rate of change of cost with respect to what? The number of unit produced is the marginal cost. Means marginal cost is equal to what? Derivative of cost. मतलब जो भी cost function given रहेगा उसका with respect to x derivative आपको find करना है, that is marginal cost. And next is what? Marginal average cost, which is equal to what? Derivative of average cost. उसी definition में दिया है कि marginal उसके वर्ड में ही दिया है कि मार्जिनल एवरेज कॉस्ट मतलब डेरिवेटिव ऑफ एवरेज कॉस्ट. नेक्स्ट इज मार्जिनल revenue function. Marginal revenue function is depend on total revenue function. But what is total revenue function? Total revenue function is R, which is denoted by capital R, equal to P into D. But what is P into D? Which is a price and demand. The multiplication of price and demand is a total revenue function. Next is marginal revenue function. Okay, main जो definition of marginal revenue function is what? Derivative with respect to D of total revenue function. मतलब किसका डेरिवेटिव फाइंड करना है? P into D का डेरिवेटिव फाइंड करना है. मतलब यहाँ पे जो प्राइस फंक्शन जो रहेगा वो भी D के फॉर्म में ही रहेगा एंड D तो ऑलरेडी है तो उसका डेरिवेटिव आपको विथ रिस्पेक्ट टू D फाइंड करना है. नेक्स्ट इलास्टिसिटी. Elasticity is denoted by this symbol. Let D be the demand and P be the price. Then elasticity is equal to what? Minus P upon capital D into derivative of demand with respect to price. Okay? अभी यहाँ पे देखो प्राइस गिवन है एंड डिमांड गिवन है तो इलास्टिसिटी आप ऐसे फाइंड कर सकते हो. ठीक है. और दूसरा फॉर्मूला ये है कि मार्जिनल रेवेन्यू गिवन है एंड एवरेज रेवेन्यू आपके एग्जांपल में गिवन है. ठीक है. तभी आप इलेक्ट्रिसिटी फाइंड कर सकते हो. और इलेक्ट्रिसिटी गिवन है, इन दोनों में से एक वैल्यू गिवन है तो आप इन दोनों में से एक वैल्यू फाइंड करनी है तो ये फॉर्मूला आप अप्लाई कर सकते हो. नाउ एग्जांपल ऑन दिस. द कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग एक्स आइटम इज C. गिवन फंक्शन इज cost function is given 2x square plus 3x plus 10. Find total cost, average cost and marginal cost and marginal average cost. ये फाइंड करना है इफ 10 आइटम्स आर मैन्युफैक्चर्ड. ओके, मतलब आपको वैल्यू गिवन है, x की वैल्यू क्या गिवन है 10. ओके, c की वैल्यू गिवन है. अभी ये c फंक्शन यूज करके बाकी सब फॉर्मूले आप हमें फाइंड करने, वैल्यू फाइंड करनी है. ओके, पहले तो क्या करते हैं हम सॉल्यूशन में जो भी गिवन फंक्शन है वो लिखते हैं, दैट इज c इज इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 10. ओके, सो एवरेज कॉस्ट इज इक्वल टू व्हाट? प्रीवियस पेज पे हमने देखा था कि एवरेज कॉस्ट का फॉर्मूला क्या है? कैपिटल C अपॉन X. ओके, विच इज इक्वल टू व्हाट? टू एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 10 डिवाइड बाय x. ओके, सो यहाँ पे क्या है? जो भी गिवन टोटल कॉस्ट गिवन है उसको डिवाइड किससे करना है? x से डिवाइड करना है. ठीक है, then we get average cost. Next is what? Marginal cost. Marginal cost is what? Derivative of cost. Okay, which is equal to d by dx of 2x square plus 3x plus 10. Okay, what is derivative of this function? 2x square plus 3x plus 10 का derivative क्या है? 4x plus 3. Next, marginal average cost is derivative of average cost equal to what? एवरेज कॉस्ट क्या था? ये था. ठीक है, यहाँ पे बाय मिस्टेक x की वैल्यू रह गई है, आप वहां पे पुट कर सकते हैं. सो डेरिवेटिव ऑफ दिस इज, पहले स्प्लिट करो क्योंकि डायरेक्टली डेरिवेटिव फाइंड कर तो u अपॉन v रूल अप्लाई करना पड़ेगा, या तो सिंप्लीफाई करो इसको 2x स्क्वायर अपॉन x
प्लस 3x अपॉन एक्स प्लस 10 अपॉन एक्स, क्योंकि हम डिनोमिनेटर सेपरेट कर सकते हैं. ओके, हेंस वी गेट हियर डेरिवेटिव ऑफ 2x plus 3 plus 10 into x इनवर्स. ओके, तो यहाँ पे x x कैंसिल होगा, ये x कैंसिल होगा एंड यहाँ पे क्या है 10 अपॉन x, तो ये 2x plus 3 plus 10 into x इनवर्स. ओके, व्हाट इज डेरिवेटिव ऑफ 2x is 2, डेरिवेटिव ऑफ 3 is 0, but डेरिवेटिव ऑफ x इनवर्स is x raised to minus -1 into x raised to -1 minus 1. Okay, equal to -1 into x raised to -2. Okay, ये इसका डेरिवेटिव होगा. यहाँ पे क्या करना है फिर, ये x raised to -2 का मीनिंग क्या है, 1 अपॉन एक्स स्क्वायर. ओके, प्लस एक्स स्क्वायर. सो ये वैल्यू क्या मिली फिर इसकी, डेरिवेटिव 10 इंटू एक्स रेज टू -1 की वैल्यू क्या मिली, 10 अपॉन एक्स रेज टू -2, दैट इज 10 अपॉन एक्स स्क्वायर. ओके, सब वैल्यू मिल गई. अभी क्या करना है, x की वैल्यू गिवन है, वो सभी इस फॉर्मूला में क्या करनी है, ये सभी फॉर्मूला में x की वैल्यू पुट करनी है. ओके, देन वी गेट, अभी फर्स्ट क्या फाइंड करना था, कॉस्ट, टोटल कॉस्ट, दैट इज c इज इक्वल टू व्हाट, x इज इक्वल टू 10, जो भी गिवन फंक्शन है डायरेक्टली उसमें 10 पुट करना था, तो वैल्यू क्या मिला फिर 240. एवरेज कॉस्ट यहाँ पे फाइंड किया था, यहाँ पे डिवाइड बाय x से. ओके, तो 240 अपॉन 10, बिकॉज x की वैल्यू क्या है 10 इज इक्वल टू 24. नेक्स्ट मार्जिनल कॉस्ट इज x इज इक्वल टू 10 इज इक्वल टू 40 प्लस 3 विच इज 43. देन मार्जिनल एवरेज कॉस्ट इज 1.9. सिंपल है कि यहाँ पे x की वैल्यू फंक्शन में पुट करनी है. नेक्स्ट फॉर्मूले से वो अप्लाई करो. ओके, देन उसमें d इज इक्वल टू 5 वैल्यू पुट करनी है. ओके, सेम प्रीवियस वाला जैसे सम किए वैसे ही फॉर्मूले सब हमारे पास है, वही अप्लाई करने. एंड लास्ट इज व्हाट, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड. इफ मार्जिनल रेवेन्यू इज गिवन, एवरेज रेवेन्यू इज गिवन, तो फाइंड इलास्टिसिटी. तो जो लास्ट वाला मैंने फॉर्मूला बताया था कि मार्जिनल रेवेन्यू इज इक्वल टू एवरेज रेवेन्यू, देन पुट करो वैल्यू कौन सी वाली, जो गिवन वैल्यू है वो उस फॉर्मूला में पुट करो, देन वी गेट इलास्टिसिटी value. Okay, this is about application of derivative, and this is the last lecture of this derivative and application of derivative. Okay, thank you so much.